پاکستان کے لیے ایک اہم شراکت دار ہے، تاہم واشنگٹن کو بھی رشتوں کا خیال ہونا چاہیے۔ سفارتکار دیویانی کے معاملے پر ہند امریکہ کے درمیان اختلافات جاری ہیں۔ ہندوستان کا موقف ہے کہ رشتوں کو نبھانا صرف نئی دہلی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ واشنگٹن کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وزیر خارجہ سلمان خورشید نے کہا کہ امریکہ ہندوستان کے لیے ایک اہم شراکت دار ہے، تاہم واشنگٹن کو بھی باہمی رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ دہلی میں فکی کے اجلاس کے موقع پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سلمان خورشید نے کہا کہ دیویانی کے معاملے پر امریکہ سے ابھی مذاکرات جاری ہیں۔ ہماری پارٹنرشپ کا رشتہ ہے، ہماری آپس کے سمبند بہت مضبوط ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ دونوں دیشوں میں لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک گھٹنا گھٹ جانے کے کارن اتنا پرانا رشتہ جو ہے وہ کہیں سے استھر ہو جائے، اس لیے ہماری جو وارتا اور ہمارا سمواد جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیں۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی دیویانی معاملے پر مذاکرات جاری رہنے کی بات کہی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ معاملے کے حل کے لیے ہندوستانی عہدیداروں سے نجی طور پر مذاکرات جاری ہیں۔ اس دوران سفارتکار دیویانی کے والد اتم کھوبراگڑے سابق IAS افسر کا کہنا ہے کہ دیویانی کی سابقہ گھریلو خادمہ سنگیتا ریچرڈز CIA کی ایجنٹ ہو سکتی ہے۔ اتم کھوبراگڑے کا کہنا ہے کہ دیویانی کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ دیویانی کے والد نے ویزا فراڈ معاملے میں سازش کا امکان ظاہر کیا۔ سابق IAS افسر کا کہنا ہے کہ جب تک دیویانی کے خلاف عائد الزامات سے امریکہ دستبرداری اختیار نہیں کرتا، انصاف نہیں ہوگا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہندوستانی سفارتکار دیویانی کی اقوام متحدہ کے لیے ہندوستان کے مستقل مشن کو تبادلے سے انہیں عبوری راحت تو ملے گی، تاہم پہلے سے چلنے والے معاملے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق دیویانی کے خلاف مقدمہ بھی بدستور جاری رہے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ مشن منتقل ہونے سے ہندوستانی سفارتکار کو سفارتی استثناء حاصل ہوگا اور اس دوران انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکے گا، لیکن دیویانی کے خلاف ویزا دھوکہ دہی کا مقدمہ بھی جاری رہے گا اور اس سے انہیں راحت نہیں مل سکتی۔ امریکہ کے حقوق انسانی تنظیموں اور گھریلو کام کرنے والوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے اداروں نے ہندوستانی سفارتکار دیویانی کے خلاف نیو یارک میں ہندوستانی سفارتخانے کے سامنے احتجاج کیا۔ امریکہ کے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس نامی تنظیم کی قیادت میں تقریباً درجن بھر تنظیموں نے اس احتجاج میں حصہ لیا۔ احتجاجی گھریلو کامگاروں کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور رخ کریں گے دوسری خبروں کی طرف۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ بدعنوانی آج سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی آج خون کے آنسو رو رہا ہے۔ فکی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے راہل نے کہا کہ بدعنوانی کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ And corruption is bleeding our people dry. It is an unacceptable burden on the people of our nation. We must fight corruption with all our strength, all our determination. Recently, we have been able to ensure that convicted criminals are kept out of power. راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت کی کچھ پالیسیوں پر مفاد پرست طاقت غالب ہے، جس کی وجہ سے کام متاثر ہو رہا ہے۔ Is complete arbitrary power at all levels of the system. That's the problem we are faced with. Short point, what has actually happened is a dramatic increase in transparency. And we have to get used to the new paradigm. There is a new paradigm. The RTI has completely changed the paradigm. And we have to get used to the new paradigm. And the only way to get used to the new paradigm is to start building structures and move away from this arbitrary idea that the chief minister can do everything he wants, the environment minister can do anything he wants. بی جے پی نے آدرش گھوٹالے پر آئی جانچ رپورٹ پر راہل گاندھی کی خاموشی پر سوال اٹھائے۔ بی جے پی نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کی بات کرنے والے راہل اس معاملے پر خاموش کیوں ہیں۔ He should respond first. Why his own government in Maharashtra completely killed the Adarsh Commission of Inquiry, which has held 3 of his own chief ministers as guilty, one of whom is still Union Minister. Therefore, Rahul Gandhi keeps quiet, whether it is 2G, whether it is Colgate, whether it is Commonwealth Ghatala, or whether it is Adarsh scam.
but only keeps on saying long was passed by us. The silence of Rahul Gandhi, along with Sonia Gandhi and Manmohan Singh, is responsible for all the scams of India. जयंती नटराजन ने वजीर ममलकत माहौलियात और जंगलात के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बताया जाता है कि जयंती नटराजन कांग्रेस के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगी। मरकजी वजीर ममलिकत माहौलियात और जंगलात जयंती नटराजन के इस्तीफे को कांग्रेस की 2014 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। 59 साल नटराजन के पास वजीर माहौलियात और जंगलात का आजादाना चार्ज था। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने नटराजन का इस्तीफा कबूल कर लिया है। जयंती नटराजन राज्यसभा की एक सीनियर मेंबर हैं और उनकी ये तीसरी मियाद है। जयंती का ताल्लुक तमिलनाडु से है और 2 साल कबल उन्हें काबीना में शामिल किया गया। 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद पार्टी अपने तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम करने के मूड में नजर आती है। बताया जाता है कि जयंती नटराजन के बाद दीगर मरकजी वुज़रा भी काबीना से मुस्ताफी हो सकते हैं। सियासी तज्जियानिगारों का कहना है कि जयंती नटराजन तो शुरुआत है, मजीद कई मरकजी वुज़रा काबीना से इस्तीफा दे सकते हैं। मुझे लगता है जयंती नटराजन को जो आज सिर्फ एक ही रेजिग्नेशन आया है वो एक्सेप्ट हो गया है। आगे आने वाले दिन में कम से कम एक्सोडस ऐसे जैसे जो नदियां भर करके बाहर आती है ना जी, जो ऊपर सुनामी की तरह कम से कम 5-6 मिनिस्टर्स रिजाइन करने वाले हैं। मुझे लगता है जयराम रमेश, आरपीएन सिंह, इवन सचिन पायलट, मिनिस्टर्स वो लोग को मनमोहन सिंह से विश्वास। राजस्थान के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के सफाए के बाद नौजवान चेहरे को पार्टी की क़यादत सौंपने की बातें हो रही हैं। ऐसे में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे पर सचिन पायलट का तकर्रुर किया जा सकता है। एआईसीसी में भी रद्दोबदल के कयास आराइयां चल रही हैं। बाज एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरियों की छुट्टी हो सकती है। जितेंद्र सिंह भंवर, जो कि राहुल गांधी के करीबी समझे जाते हैं, उन्हें एआईसीसी का ओहदा दिया जा सकता है। इसी तरह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की कुर्सी अशोक तंवर को दी जा सकती है। अशोक तंवर इस वक्त एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। 9 PM खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। वाह से वाह, क्या बात है। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया। खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दखननामे में और 7:30 बजे खास बात में। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। फिल्म अदाकार संजय दत्त पैरोल की मंजूरी के 2 हफ्ते बाद आज पुणे के यरवडा जेल से बाहर आए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स मीरान ब्रावंकर ने संजय दत्त की रिहाई की तस्दीक की। वाज़ेह है कि संजय दत्त को 1993 के सिलसिलेवार धमाकों से जुड़े गैर कानूनी तरीके से असलहा रखने के जुर्म में अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी। 53 साल फिल्म अदाकार ने अपनी अहलिया मान्यता की खराबी सेहत की बिना पर पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त की थी। उत्तर प्रदेश के महकमे सेहत ने मुजफ्फरनगर और शामली जिलों के पनाहगुजीन कैंपों में रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर SK त्यागी ने कहा कि ठंड और बारिश की वजह से पनाहगुजीन कैंपों में रहने वाले अफराद की सेहत मुतासिर हो सकती है। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने मजीद कहा कि खासतौर पर छोटे बच्चों, ज़ईफ अफराद और ख्वातीन की सेहत को ज्यादा खतरा है। SK त्यागी का कहना है कि ज़ईफ अफराद का निज़ाम तनफ़ुस मुतासिर हो सकता है।
मुजफ्फरनगर और शामली के रिलीफ कैंपों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कौमी अक़लियती कमीशन का एक रुकनी वफ्द जल्द ही मुजफ्फरनगर का दौरा करेगा। ये कहना है कमीशन के चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह का। सीनियर सहाफ़ी कुर्बान अली से बातचीत के दौरान कमीशन के चेयरमैन ने ये बात कही। कई 100 लोग अभी बाकी हैं और वहाँ के हालात, जैसे ये मीडिया वगैरह में भी रिपोर्ट्स आए हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी जो मेंबर है हमारे अक़लियती कमीशन की बेगम फरीदा अब्दुल्ला खान, ये अब जा रही हैं वहाँ दोबारा। हमने ये जायजा लिया है कि जब तक कि वहाँ जो लोग हैं अपने अपने गांव, अपने अपने घर ना दोबारा बसाएं, तब तक कि जो हम चाहते हैं कि मामूल पे हालात बने, तो वो बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, वजाहत हबीबुल्लाह से की गई मुकम्मल बातचीत आप देख सकते हैं कल दोपहर 1:30 बजे। आगे बढ़ते मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में पनाह लिए हुए 100 दिनों से ज्यादा का अरसा बीत गया। रियासती अक़लियती कमीशन, कौमी अक़लियती कमीशन, कौमी हुकूक इंसानी कमीशन और बहबूद अतफाल कमीशन ने भी रिलीफ कैंपों का मुआयना करके रिपोर्ट दी। अभी भी कमीशनों के दौरे जारी है, लेकिन अखिलेश हुकूमत की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उधर मुतासरीन अपना हाल-ए-ज़ार सुना कर थक चुके हैं, लेकिन दर्द का मुदावा होता नजर नहीं आ रहा है। टीम तो बहुत आ गई, 3 महीने हो गए सिलसिला चल रहा है। कभी कोई आ रहा है, कभी डीएम आ रहा है, कभी एसडीएम आ रहा, कभी कोई अधिकारी आ रहा, लेकिन आज तक हमारी कोई समस्या पूरी नहीं हो पा रही। बच्चे मरे जा रहे हैं, उनकी दवाई का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। सर्दी आ रही है, जो है ये टपक रही है, इनकी तरपाल जो है अगर जा करके देखो सुबह तो उनसे शबनम टपकती है। हमें नहीं कोई उम्मीद लग रही कि आज भी कुछ होने वाला है। कैंप्स शामली एंड मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट्स and we are doing so and we will submit our report to the commission accordingly. बेंगलुरु में आज जनूबी हिंद के अक़लियती एनजीओज की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कौमी अक़लियती तरक्याती और मालियाती कॉरपोरेशन के तहत मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए जारी स्कीमों और प्रोग्रामों की जानकारी दी गई। मुक़र्रिरीन ने कहा कि सरकारी स्कीमों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एनजीओज का सरगर्म और फाल रहना जरूरी है। बेंगलुरु में जनूबी हिंद के अक़लियती एनजीओज की एक रोजा कॉन्फ्रेंस हुई। कौमी अक़लियती तरक्याती और मालियाती कॉरपोरेशन के तहत मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिद्धारमैया ने अक़लियतों की फलाह के लिए हुकूमत की पॉलिसियों का जिक्र करते हुए अमली इक़दामात का बखान किया। रियासत के वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम ने अक़लियतों में बेदारी के ताल्लुक से रोशनी डाली। Financial assistance from ₹50 lakh to 1 crore at district level and from ₹20 lakh to 50 lakh at taluka level for the construction of Shadi Mahal or community hall. I hope the NGOs would rise to the occasion and act as our ambassadors and help the minority community, especially women. This year, almost all we have started. This year buildings will also be given for this programming centers in which awareness will be there for giving training to the NGOs. Up-to-date informations will be given. इजलास में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सच्चर कमेटी की 90% सिफारिशात को नाफिज किया है। With the right to information. If any Tahsildar, any DC has not been implementing the program, you need not come to the Chief Minister, you need not come to the Minister. You can immediately ask the Tahsildar how much houses have been allocated under 15-point program, how much house you have given. You ask, you have given that right, that power. Why are you not utilizing that power? इजलास में NMDFC की स्कीमात की जानकारी पर मुश्तमिल वाउचर का कन्नड़ी जबान में इजरा अमल में आया। ETV न्यूज बेंगलुरु। बेंगलुरु में अक़लियतों की स्कीमों के तई बेदारी पैदा करने के लिए मुनक़िदा प्रोग्राम में बैक वक्त वज़ीर आला और रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद की नींद में गर्क होने का मंजर देखने को मिला। एक जानिब मरकजी वज़ीर के रहमान खान का खुतबा जारी था तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिद्धारमैया और वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम बड़ी मुश्किल से अपनी नींद पर काबू पा रहे थे। इसे आप लीडरों की थकावट कहें या कुछ और, लेकिन कॉन्फ्रेंस के हॉल में मौजूद लोगों की कसीर तादाद यही महसूस कर रही थी कि बेदारी के मकसद के लिए मुनक़िदा इजलास भले ही उनके लिए खास हो, लेकिन लीडरों के लिए तो ये एक रिवायती इजलास है।
The next step is that the development of minorities form part of the 11th five-year plan. Earlier, मरकजी वजीर सेहत और गुलाम नबी आजाद ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत की नुक्ता चीनी की है। आजाद ने कहा कि अस्पतालों में तामीराती काम सुस्त रफ्तारी का शिकार है। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत शोबे सेहत में सही तरीके से रकम का इस्तेमाल करे। आजाद ने जम्मू के परेड ग्राउंड में आरोग्य मेले के इफ्तिताह के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया, जहां जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। वजीर आला साहब की तरफ से गुजारिश करूंगा, अपनी तरफ से भी, क्योंकि अगर ये कहेंगे पैसे नहीं है तो आप समझेंगे कि पता नहीं क्या बात है, ये दिक्कत है मुल्की पैमाने पर। तो ये जो 322 अस्पतालों के अलग अलग मदद हो रही है, बहुत सारे मुकम्मल हैं, लेकिन जो नहीं हुए उनको जल्दी मुकम्मल करें। इसी तरह से 2 मैटरनिटी हॉस्पिटल 200 बेड के जम्मू और श्रीनगर में है, उनमें भी बड़ी धीरे से काम चल रहा है। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के परेड ग्राउंड में आरोग्य मेले का इफ्तिताह किया। दोनों लीडरों ने आयुर्वेदिक तरीका इलाज को अपनाने पर जोर दिया। इस मौके पर आजाद ने कहा कि रियासत में आयुर्वेदिक अस्पतालों की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आरोग्य मेले का इफ्तिताह किया। आयुर्वेद, योगा, यूनानी और होम्योपैथी तरीक़ा इलाज से मुतालिक ये सेहत मेला मरकजी वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की जानिब से आयुष ने मुनक़िद किया है। इस मौके पर आजाद और दीगर मुक़र्रीन ने कहा कि इस तरह के मेले हर रियासत में मुनक़िद किए जा रहे हैं ताकि लोग रिवायती तरीक़े इलाज और होम्योपैथी की जानिब ज्यादा से ज्यादा राग़िब हों। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जितना हो सकता था, मैंने अभी जैसे जिक्र किया कि 5000 से ज्यादा लोगों को मेरी मिनिस्ट्री यहाँ तनख्वाह देती है। जो सिर्फ जो हमने कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है या NRHM में हम मदद करते हैं, और उसमें आयुष वाले भी हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर भी हैं, और अभी 1000 लोगों को और फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जो नया कार्यक्रम मैंने यहाँ अनाउंस किया। तो हमारी सरकार की तो यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिले, चाहे वो आयुष के डॉक्टर्स हों या एलोपैथिक के डॉक्टर हों। और अब जितने अवेलेबिलिटी है मेरे ख्याल में उस हिसाब से तो हर जगह डॉक्टर्स उपलब्ध किए जा रहे हैं। आजाद ने कहा कि उनकी वजारत की जानिब से गुज़िश्ता कुछ सालों में 52,000 से जायद आयुर्वेदिक दवाखाने कायम किए गए हैं। ताहम उन्होंने कहा कि शोबे सेहत को मजीद फ़आल बनाना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि आरोग्य मेला लोगों को यूनानी दवाओं की जानिब राग़िब करने में मुआविन साबित होगा। आमतौर पर तो जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ये तो 9 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम भी स्टेटों की मदद करें और हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में उनकी सहायता करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से तकरीबन 52,000 के करीब अलग अलग हॉस्पिटल तैयार हुए। तो लेकिन उस शिद्दत से, उस तेज़ी से जो टेक्नीशियन की इंस्टीट्यूशंस थी वो नहीं बढ़ी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकारें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है उसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। इसमें बेशक 5-10 दिन ज्यादा लगते होंगे इलाज का असर हासिल करने में, लेकिन इस इलाज में बुनियादी जो उसका जो वो जड़ तक जाया जाता है, उसके रूट कॉज तक जो है जाया जाता है। सिर्फ ऊपरी तौर पे जो है एक कॉस्मेटिक इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती है। और दूसरी बात ये, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। यहां पे अगर आप हेडेक या सिर के दर्द के लिए इलाज हासिल करें तो आपका सिर दर्द चला जाएगा, आपको उस दवाई से दूसरा असर नहीं पड़ेगा। यहां पे हम एंटीबायोटिक्स, हर चीज के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। सिर में दर्द हो तो चलिए आप एंटीबायोटिक, किसी और चीज की बीमारी हो तो एंटीबायोटिक, लेकिन एंटीबायोटिक्स का जो साइड इफेक्ट रहता है उसके लिए फिर अलग दवाई, फिर उस दवाई के लिए अलग दवाई। भारत सरकार
इस मौके पर मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि आरोग्य खास तौर पर योगा के जरिए इलाज को मकबूल बनाने की जरूरत है। ETV न्यूज जम्मू। 9 PM खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। अपनाइए मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मेडिकल के मैदान में रोज नए नए तजुर्बात सामने आ रहे हैं। तिब्बी मैदान में लेजर फिजिक्स एक ऐसा तरीका इलाज है जो सर्जरी के साथ साथ भारी सनत में भी कारआमद हो सकता है। लेजर फिजिक्स को अब तलबा और तालिबात करियर के तौर पर अपना रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि इसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम तलबा और तालिबात भी शामिल है। कानपुर में मुनक्किद होने वाले लेजर वर्कशॉप में साइंसदानों ने ये बताने की कोशिश की कि लेजर फिजिक्स का इस्तेमाल जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में किस तरह किया जा सकता है। इस वर्कशॉप के माध्यम से दरअसल हमारा ही कॉलेज क्राइस्ट कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां पर लेजर की सारी सुविधा उपलब्ध है। हम अपने साथियों को जो हमारे दूसरे महाविद्यालय के हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि ये सारी सुविधाओं को वो यहाँ से सीख करके, बल्कि हम उनके कॉलेज में भी जाकर के ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि जिससे फिजिक्स को वो आसानी से अपने बच्चों को समझा सकें। इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले साइंसदानों के अलावा तलबा और तालिबात ने शिरकत की। वर्कशॉप में मुस्लिम तलबा और तालिबात भी खासी तादाद में शामिल हुए। कुछ बच्चे लेजर फिजिक्स को बतौर करियर अपनाना चाहते हैं। लेजर एक मोनोक्रोमेटिक बहुत शार्प और इंटेंस लाइट की बीम होती है, तो इससे हम लोग मेडिकल में बहुत हेल्प मिलती है हम लोगों को। ब्यूटी से जो रिलेटेड जो होती हैं प्रॉब्लम्स, उसमें जैसे एक्नेस वगैरह की स्किन की प्रॉब्लम्स हम लेजर से दूर करते हैं। यानी कि मेडिकल फील्ड में इसका बहुत यूज है। उसके बाद हम कार्बन लेजर को यूज करते हैं एज अ कटर। आगे आने वाले समय में लेजर का काफी हद तक यूज होगा और हम अभी लेजर के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी क्लास में भी है, सिलेबस में भी ये प्रेजेंट है लेजर, तो उसके बारे में काफी कुछ हम जान रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है यहाँ पर। सिक्योरिटी पर्पज में आजकल काफी यूज हो रहा है। जैसे आपने देखा कई मूवीज जो आती है उसमें सिक्योरिटी कैमरे के रूप में या सिक्योरिटी लेजर लाइट होती हैं जो हार्मफुल भी हो सकती हैं, और इसका लार्ज रेंज तक के लिए यूज होता है। डिफ्रेक्शन कम होने के कारण लेजर लाइट जो है फैलती नहीं है, इसलिए इसका लार्ज रेंज के लिए काफी यूज होता है। वर्कशॉप में शिरकत करने वाले साइंसदानों ने बताया कि मुस्तकबिल में इस इल्म का इस्तेमाल नाजुक किस्म की सर्जरी से लेकर स्टील की भारी सनतों में भी किया जाएगा। जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत पोजीशन में पहुंच गई है। टीम इंडिया ने जनूबी अफ्रीका के सामने जीत के लिए 458 रनों का निशाना रखा है। दूसरी इनिंग में टीम इंडिया को मजबूत पोजीशन में पहुंचाने में विराट कोहली ने अहम रोल अदा किया। कोहली सिर्फ 4 रनों की कमी से अपनी सेंचुरी नहीं बना सके। निशाने का पीछा करने उतरी जनूबी अफ्रीका की दूसरी इनिंग की शुरुआत अच्छी रही। 108 रनों के मजबूरी स्कोर पर जनूबी अफ्रीका के पहला विकेट गिरा। ताहम 118 के मजबूरी स्कोर पर जनूबी अफ्रीका को हाशिम आमला के शक में दूसरा नुकसान उठाना पड़ा। आखिरी 7 मिनट तक जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 138 रन बना लिए हैं।
अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस बात के इम्कानात हैं कि मुज़ाकरात के जरिए ईरान के मुतनाज़ जौहरी प्रोग्राम को रोका जा सकेगा, जो गुज़िश्ता 10 सालों से अमेरिका के लिए एक चैलेंज रहा है। व्हाइट हाउस में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर बराक ओबामा ने यह भी कहा कि नई पाबंदियों की इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि ईरान ने जिनेवा में हुए हालिया अबूरी मुआहदे के तहत उसके जौहरी प्रोग्राम की दूसरे मुल्कों के जरिए निगरानी पर इत्तेफाक किया है। सदर ओबामा ने कांग्रेस से ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद न करने और सिफारती कोशिशों को एक मौका देने पर जोर दिया। ख्याल है कि इससे कबल ईरान ने कहा था कि नई पाबंदियों से मुआहदा नाकाम हो सकता है। अमेरिका के रियासत टेक्सास में एक हिंदुस्तानी नजाद अटॉर्नी नंदिता वेंकटेश्वरन बेरी को टेक्सास के वजीर खारजा के ओहदे पर तकर्रुर किया गया है। हैदराबाद में पैदा हुई नंदिता इस आला ओहदे पर तकर्रुर की जाने वाली हिंद नजाद की पहली खातून है। 45 साल नंदिता की तकर्रुरी का ऐलान टेक्सास के गवर्नर रिक पेरी ने किया। नंदिता बेरी 7 जनवरी को अपना ओहदा संभालेंगी। और पेश आज की तिरछी नजर। तो 9 PM खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया, खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कन नामे में और 7:30 बजे खास बात में। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। अर्ज करता हूं कि सदाए हजरत हसान बन के आए हवा, सदाए हजरत हसान बन के आए हवा, कहूं मैं नात तो वो नात गुनगुनाए हवा। सदाए हजरत हसान बन के आए हवा, कहूं मैं नात तो वो नात गुनगुनाए हवा। और हवा तो रोज ही आती है, आज जिद ये है। हवा तो रोज ही आती है, आज जिद ये है, मदीने जाने का पैगाम लेके आए हवा। हवा तो रोज ही आती है, आज जिद ये है, मदीने जाने का पैगाम लेके आए हवा। और रहे जो जाके दयारे नबी की गलियों में, रहे जो जाके दयारे नबी की गलियों में,
तो चलने फिरने के आदाब सीख जाए हवा, तो चलने फिरने के आदाब